Hi guys, I am Pushkkar, and this is my new podcast series in which I'll be doing certain podcasts wherein I will try to understand the business and life of various individuals. So, hope that you all like it and enjoy this new attempt or this new show. Our first guest is Apurv Dakaliya. He is associated with Apurv Coatings and he's running this business since the last 15 years. I hope that his journey and his life experiences will not only help you but also motivate you, and hope so you enjoy the show. Thank you. Around, and so let's start. थैंक यू Yes. थैंक यू तो थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दे, बोलो क्या चल रहा है आजकल लाइफ में। कुछ नहीं भाई आराम टोटली आराम काम चल रहा है आई एम वर्किंग बट it's not that much of hard work which I had some years back. You want to like brief about this? I am into painting contracting. I am into painting business. Okay. So basically, I do industrial painting, residential painting, Which and is a commercial huge, huge painting. kind of a Painting and market. coatings is a very, very, very big field. Yeah, If because you- ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर लोगों को मैं बोलूँ कि पेंटिंग करता है तो दे विल नॉट लुक एट इट विद थिंक यार इसमें बड़ा पोटेंशियल दिख सकता है अपने को। यू फील सो? पेंटिंग में बहुत ही बड़ा everything that you buy Yeah. is painted these days. Yes. May it be a watch, may it be your TV, Yeah. may it be your walls, it Anything. can be anything. Yeah. You can paint everything whatever you want. So Okay. basically painting and coating is a very very big and a very vast field. Asian Okay. Paints जो अपन हाँ, जानते हैं हाँ. Yeah, exactly. multi-thousand crores company just on that scale only. Definitely. तो भाई मतलब I wanted to actually know कि how did you land up in this business? Because as far as I know, you had completed civil engineering. I had I mean, This you is a know, very- you come from a civil background. this is a long story actually. Some हाँ. parts are तो थोड़ा सा sad, brief some कर. parts हाँ. are तो ये brief कर happening. actually ये So सुनना है the मेरे sad part was कि my dad हाँ. in 2007 when I was in diploma second year he met with an accident नहीं क्या बोल सकता पर he had his issue, he had some leg injury. He had an injury, हाँ. So what happened is he lost his leg at that point of time. So I exactly had no idea what to do and how to do it. तो मैंने बस सोचा कि डैड का ये बिजनेस है तो बेस्ट ऑप्शन फॉर मी इज टू टेकिंग इट ओवर बिकॉज आई हैव समथिंग नॉट वेरी कॉन्क्रीट बट आई एटलीस्ट नो समथिंग अबाउट इट तो मैंने बस उसके वजह से चालू कर दिया था एंड दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड अ पार्टनर I was not really thinking about going into this business directly, but he had completed paint diploma from Tata Motors. प्रशांत पाटील नावाचं तर तो असंच अप्रोच झाला एक दिवशी की तुझे डॅड पण करायचे आणि ये फील्ड में तुमको भी तेको भी नॉलेज है तो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग टुगेदर तो we didn't give it a lot of thought. I wanted to start working as soon as possible and make money. Every guy has that dream. Since when you have done completed your education or you're doing that, you want to earn money as soon as possible. तो इस हिसाब से फिर मैंने भी ज्यादा थॉट नहीं दिया था. We didn't even know कि कहाँ से आएगा काम क्या होगा. And we started with it. And the best part about this was we had another friend whose brother was doing some work for TCS. Okay. In Yaroda. So he was doing painting or was No. He was the interior appointed for the TCS workshops. So what he did was he made a contact to him कि ये मेरे दो नए दोस्त हैं इन्होंने पेंटिंग का बिजनेस चालू किया है so see if you can hire them. Okay. And that was very amazing part. We met him for I guess once or twice. I did explain him कि I know painting का basics कि क्या होता है क्या नहीं होता है. And that guy also trusted us कि हाँ I trust you with this guest house of TCS. Complete the project. And
that is how we started it. Initially, when he told me about the part, I didn't even know ki what are the rates, how are the rates calculated. I just knew the work. तो कैन आई जस्ट कट यू लिटिल, तेरा एलिवेटर पिच जिसको हम बोलते हैं कि मार्केटिंग पिच जो रहता है, तो वो अगर तू वो टाइम पे जो दिया था, तो आज के टाइम पे उसको कैसा, मतलब हाउ डू यू फील कि वो क्या दिया रहेगा, और इफ आई कैन गो बैक उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, या वो परफेक्ट पिच था उसकी वजह से आज इधर तक आया, यू स्टिल काम मिल गया मतलब परफेक्ट पिच था, ऐसे मैं सोचता हूँ. अगर यू कैन नॉट फेच द वर्क देन देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन. माइट बी द पिच, माइट बी योर वर्क, माइट बी एनीथिंग. बट if you can convince somebody else, that is how you know कि what is your work, how can I do it, and if you can put it in somebody else's eyes, तो it becomes much more easier कि हाँ भाई मैं ऐसे करके देने वाला हूँ, ये चीज मेरा प्रोसेस होगा और ये चीज से अपना आगे फॉरवर्ड बढ़ सकता है. That man was really good. He did. हाँ, त्यांनी तेवढे मला कधीच म्हणजे त्यांनी तेवढे प्रश्न नाही विचारले. हम लोग गए, मैं और प्रशांत थे, तो उसने पूरा फ्लैट दिखाया. एंड व्हाट कंसर्न व्हाट ही हैड वाज कि पेंटिंग तो ठीक है तुम लोग कर लोगे. He had a lot of polishing का work also right then over there. And me and my partner was never thinking about it कि polishing का भी करेंगे, क्योंकि वो मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था उस बारे में, ना प्रशांत को था. We were only paint related people. तो पहले थोड़ा वो था कि हम दोनों में काम तो ले लिया, पिच तो कर दिया, पर अगर सामने वाला painting work was around at that point in 2007, it was around my first shoot. Painting quotation was 1,50,000 rupees, and वो time पे, and polishing quotation was somewhere around 70,000 rupees. पॉलिशिंग इज बेसिकली Wooden polishing. पेंटिंग का पार्ट है या Coatings ये फील पकड़ लेंगे ना, तो सब ये Okay, सारी तो ये चीज एक- कोट ही हाँ, है मतलब कि एक- कोई हाँ, भी चीज exactly. तू कोट Coating कर के लेगा अंदर क्या, आएगा. तो वो Okay. सब वही, बट प्रोसेस अलग अलग होती है. हाँ, In paint, for example, you can paint with brush and roller also. You can paint with trowels also, or you can spray paint also. Okay. Whatever process you prefer. Same goes with polishing thing. But we had a little less idea about it. हाँ, तो हम लोग ने पिच कर दिया, काम लेके आए, सब कुछ हो गया. उसका भाई वो इसमें था कि ये काम कर देगा ये वो. पर हम लोग दोनों जब वापस आए तो हम लोग को आइडिया ही नहीं था कि साला ये काम पॉलिशिंग कैसे? कैसे हाँ. करते हैं कि मतलब ले तो वॉल लिया, तर but- वॉल माहिती वॉल सरफेस कसं करायचं किंवा त्याची प्रोसेस आपण आणि त्यावेळेला असं युट्यूबचा जमाना नव्हता की तू डालेगा और मिल जाएगा. साला वो टाइम पे 2G. बीएसएनएल का जो पैक आने का वो टाइम पे विच वाज अ होम कंप्यूटर दैट वाज 256 kbps Yeah, वगैरह. yeah. तो डाउनलोड भी अगर आपको कुछ करना होगा, Dial-up यूट्यूब वीडियोस तो बहुत ही दूर की बात थी. यू कुड नॉट स्ट्रीम थिंग्स ऑनलाइन बैक देन. Exactly. So only if you can read things and if you know things, that is how you could. But reading cannot let you know कि what kind of quality are you going to give. The quality is person's eye. कि हाँ. That was I think वो टाइम जब मतलब एक्सपीरियंस से ही आदमी सीखता है, काइंड ऑफ. हाँ completely. हम लोग बिना एक्सपीरियंस के थे. Generally हम लोगों को that is the first work कि हाँ I could pitch everything, but I didn't know on site how would I do my stuff. Before that I was working at some builder's office for some time, so I knew the ideas कि हाँ कैसे कैसे चीजें होती है, कैसे कैसे मैं एग्जीक्यूट करके ले सकता हूँ चीजों को. तो उसी बेसिस पे हम लोग गए. यहाँ चल करते हैं. That project was around 1.5 month का प्रोजेक्ट. ये वो थोड़ा जो पहले प्रोजेक्ट में होता है कि एक्सपीरियंस कम होने की वजह से थोड़ी सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते कि नहीं हमने ये प्रॉमिस किया था ये डिलीवर करेंगे. 19-20 का काम जो होता है, तो द स्टार्टिंग पॉइंट पर इट वाज ना, आई वाज नॉट माइंडिंग इट कि 19 होने थे या 20 होने थे, बस काम हो जाने से मतलब है. बाद में ये 3 प्रोजेक्ट्स होने के बाद फिर वो समझ में आया कि दिस इज द इंडस्ट्री वेयर पीपल वॉच यू एंड पीपल वॉच योर वर्क. If I can go and I can take work from you, a person sees something that what he can see. I can see through your eyes what you want. And if I cannot, in one work I cannot deliver it, second work I cannot deliver it, and then if I fail in my third work also, this is always going to be a problem. I'm going to face this problem all my life. Stick in that side. हाँ. तो वो इसमें था कि पहला काम हमारा कैसे तुम
निकल गया। फिर हम जो था मेरे भी मन में था कि अभी आज जो मैं बोल रहा हूँ कि 19-20 हो गया था, तो वो 19 जो था वो मुझे हमेशा से खटक रहा था कि नहीं भाई, कि इतना पैसा अगर तू किसी चीज के लिए चार्ज कर, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी, आई डोंट थिंक सो आई चार्ज्ड anybody that much after that project. So you charged on a higher scale or on a lower scale? On a very higher scale. Achha, on a very and higher scale. That was it was a guest house, but it was company guest house. It was not some individual guest house. People of very higher post or higher thing were going to stay there. तो वो टाइम पे वो नहीं समझता था। आज मैं किसी के फ्लैट का काम कर दूं या कुछ कर दूं, तो आदमी जब सामने होता है तो वो कहीं ना कहीं पे इधर टाइम की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, या फिर इट्स अबाउट द मनी। बट व्हेन अ पर्सन इज गिविंग मी टाइम एज वेल एज इज हार्ड एंड मनी, तो ये चीज कॉम्प्रोमाइजेस तो नहीं होनी चाहिए ना वहां पे, क्योंकि मैं मेरे साइड से नहीं करूंगा कि इफ आई एम गिविंग टाइम एज वेल एज मनी, तो व्हाट एल्स डू यू वांट। So first work was actually very well. That man was very supportive. We got through it. We completed it. But it was always 19 वाला काम मेरे नजर में, कि मुझे आज भी वो चीज अगर मुझे वापस से कोई दिखा देना तो I can rectify it 1,000 more times right now. But it got away everything. सेकेंड फिर हमको उसके अगले ही महीने परांस पे ब्लू रिज करके जो ये था, तो उसका लॉबीज का पेंट, टावर नंबर 2 के लॉबीज का पेंटिंग था। तो वी गॉट दैट प्रोजेक्ट कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड 25 फ्लोर्स ऑफ लॉबी वी हैव टू पेंट। तो देन वी हैड सम मुंबई का पेंटर। Actually that guy made us learn कि how work is done. तो उसने काम करने का जब तरीका बताया, and his quality was it was 20 on 20. Okay. Which satisfied my eyes exactly. कि हाँ। तो then I got to know कि हाँ, it is not only about money and it is all about people also. How do you handle people? How do people handle you? Yes. तो वहाँ पे फिर समझ में आया कि नहीं भाई, थोड़ा टाइम या ये चीज को आइडिया दे देंगे या सामने वाले को भी थोड़ा समझ लेंगे, तो ये चीज बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। एंड राइट नाउ पेंटिंग इंडस्ट्री इन लास्ट 15 years it has grown so much. For example, if you see in car painting, if you have any idea about Broto motive, if you could like I watched their videos. So those people are into car painting. Okay. But they paint cars so amazingly well that even the manufacturers don't. Oh, okay. So that is the quality that they put it on videos, they do. So it amazes me कि हाँ, even if you are not a manufacturer and if you can give such amazing quality, so why can't I do that? Yes. And this is 15 years from what I am doing now. तो जो है काम बढ़ते गया। अब और एक्चुअली मैं हम जहाँ पे रहते हैं वो जगह का प्रॉब्लम वही है कि आधे लोगों को काम करना भी है और नहीं भी करना है, आधे लोगों को बस पैसा कमाना है, और आधे लोगों को कैसे तो भी कट जाए। हाँ, या जिसको 19 भी नहीं, जिसको 15 काम देना है, बस निकल जाना है कि मेरा पैसा निकल जाए, बस बात हो गई। तो where do you really want to stand? That was the case. Okay. And for a long period of survival, I always think quality is the only thing which is going to fetch, which is going to be with you all your life. कि आज से 20 साल बाद भी मैं किसी को प्राउडली बता सकूं कि अगर मैंने पेंट किया था। And exactly. नहीं, I understand that. I also genuinely feel कि तू अगर क्वालिटी काम देगा तो ही पब्लिक लोग आता है। Exactly. ऐसा मुझे लगता है। तो आज सस्ता माल देने को जाएगा या कहीं कुछ जुगाड़ जमाने जाएगा, वही काम तेरे को कल वापस नहीं मिलेगा। कल एग्जैक्टली वापस नहीं आता है। मतलब एक एंड ये जो होता है पेंटिंग एंड इसमें फॉल्ट्स बहुत इजीली दिखाई देता है। तो वंस अ फॉल्ट हैज मेड अ डेंट इन द पर्सन्स हार्ट, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू क्लियर इट अप, वो नहीं जाता है। मतलब आदमी को वही चीज रहता है कि नहीं, तूने पहली बार में सही नहीं किया, पहली बार में सही नहीं किया। एंड पहली बार में नहीं होता है, मतलब इट ऑलवेज कम्स विद एक्सपीरियंस, इट ऑलवेज कम विद व्हाट पीपल से। अगर
आप और मैं कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, अगर मेरे को समझ में आ गया कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, तो आई कैन ऑलवेज डिलीवर इट टू. बट इफ आवर कॉन्वर्सेशन इज नॉट गोइंग वेल, और इफ आई कैन सी कि if you are the one who is adjusting with that 19-20 वाला फर्क which I am talking, and if I understand कि you can adjust with 90, तो I make my 20 or 19. तो that is what you are giving in terms to the exactly, customer. because if I am giving my 20, but if you don't understand the 20, if you're understanding the 90, so my 20 becomes 19 for you. Yeah, true. So understand what people want from their side and deliver the only thing that what they want. Perfect. At the end of the day, it all goes well. If you cannot deliver things only, and timing is also issue here. कि if you 10 दिन किसी चीज का बोल दिया और वहां पे 12 दिन हो गए, तो ये चीजों में लोग एडजस्ट नहीं करते हैं कि नहीं True. मेरे घर पे कचरा हो रहा है, मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे वहां पे वो प्रॉब्लम हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी क्लियर कर दीजिए. इफ आई थिंक मतलब अगर किसी के घर में शादी रहेगा और तू 10 दिन के जगह पे 12 दिन किया, तो उसका 2 दिन तो आगे मंडप बढ़ेगा. एग्जैक्टली तो वो लफड़ा होने ही वाला है. तो दैट इज व्हाई आई थिंक वो ड्यूरेशन, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू नो योर वर्क फॉर दैट. कि हाँ, इफ यू आर फोर्सिंग मी, टाइम फ्रेम भी कम है तो इंक्रीज माय वर्किंग आवर्स. If you cannot even do that, you have to increase the time frame. Yes, true. So that is how you have to make people understand. And in that perspective also I feel कि तू अगर सच्चा पिक्चर देगा किसी को सामने कि बॉस 10 दिन नहीं होगा, 12 दिन ही लगने वाला है, तो आदमी सामने वाला आदमी एक्चुअली उसमें उसका फोकस ही हिला देता है. कि if I am doing the work and if I cannot complete in 10 days and I am very sure about it, which I am not like, so you have to shift your focus. You cannot be and somewhere as a customer I will appreciate it कि भाई इसने मेरे को झूठ तो नहीं बताया, तो नहीं बोला कि सच बोला 12 दिन लग रहा है, मैं उस हिसाब से आगे का प्लानिंग अभी करूं. People exactly do the same thing कि आपको 10 दिन में चाहिए, मैं आपको 8 दिन में करके दूंगा. वो होता नहीं है. But eventually after initially on the 7th day he will tell कि नहीं होगा सर, और 2 दिन में चले जाएंगे, या फिर ऐसे भी होगा कि वो 8 दिन में आपको कुछ तो करके कंप्लीट करके देगा, पर वो चीज आपको उतनी अनमैच क्वालिटी की मिल ही नहीं पाएगी. तो व्हाट हैपेंस इज कि ये दोनों चीजें भी होती है कि आपको अनमैच क्वालिटी भी देनी है तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा. अगर वो चीज में अगर सामने वाला कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो ठीक है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट और आई वुड नॉट गो ऑन कॉम्प्रोमाइजिंग माई क्वालिटी, बिकॉज ही इज अ वन टाइम कस्टमर, ही इज गोइंग टू रिटर्न टू मी इन आफ्टर एटलीस्ट 3 to 5 years. Exactly. तो बेसिकली 1000 people who are going to watch his place or his bungalow, his company, whatever it is. It is going to set a wrong impression for 5 years, which is a long problem for my business. Because your business is what your work is. Exactly. People see what we show. Advertisement actually. कि अगर किसी को अच्छा दिखता है वो घर तो ऑटोमेटिकली तो ही बिकेगा, वो सीधा हिसाब बिकेगा, वो बिकेगा. Yeah. So basically, what I can summarize is कि एक तो you should understand what field you're working in. Exactly. Secondly is quality is more important than giving false assurances. False assurances. That is something which I can take out. And one thing which I liked was कि अगर कस्टमर को 19 ही समझ रहा है तो मेरा 20 उसके लिए मैं 19 करके दूंगा. That is something जो एक कस्टमर रिटेंशन के लिए हेल्प होता है. राइट. तो मे बी he had something in his mind, but if I'm giving something more, तो obviously I am even raising his thought process कि हाँ, whatever I am thinking 20 is not 20. किसी और के नजर में मैं भी 19 ही हूँ. Maybe, probably. But you raised his. Exactly. So I can educate somebody in that case कि this is the field what I am working in, this is the way that I work. And if you can see the way of working through my eyes, it will be very different because I am doing this day and night. This is only 15 days, 20 days, 1 month, 6 months of work for you. But for me, this is continuous work from 15 years which I am doing. So it makes a lot of difference. And if I cannot improve after 15 years also, so I am at the wrong place. I mean, speaking about wrong place, about problems, जब तूने स्टार्ट किया था राइट, तो ये मैंने तेरे को बताया भी था कि
लोग तेरे पिताजी के लिए काम कर रहे, तेरे बराबर। वर्कर्स, तो दे नो कि यू आर रुकी, तू नया है, तो हाउ डिड यू एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी की बॉस, इवन आई, बिकॉज सी That phase was very different. My dad my like dad try to understand what there is, I'm there is a coming lot at of my difference here. What you are trying to say, na? My dad did not have the education. He worked, then he got himself educated, and then he improved his work. I was from civil field only, so basically in books also and everything, I had been studying about it, ki how things are done, what is line of plan, line of action, and to grow any business, you have to have those things, and depending on the labors, they change. These fields, you don't have एवरीडे लेबर. जो मेरे 15 साल पहले मेरे पास काम कर रहा था, वही आदमी मेरे पास आज नहीं काम कर रहा है, और कर भी रहा होगा तो हाथ से पेंट नहीं कर रहा है. फिर he might be a supervisor. Everybody is seeking for some kind of approval. promote होते हाँ, होते promote, हर आदमी प्रमोशन के लिए काम कर रहा है बेसिकली. तो you just have to understand the people who understand your. For example, if you are my customer, I understand, I am looking what you are looking at the wall without it has been painted. I am understanding your picture. I am painting it through my eyes. But if I can deliver it to the person who's working, then it is going to make a difference. Just understanding your picture, it is not going to make any difference. Because if I cannot deliver it to somebody else's eyes who is not educated like us, so what difference does it make? You have to make that person understand कि हाँ भाई इस तरीके से ही काम करना है. तेरे मन में भी आएगा कि ऐसे नहीं करना है, फिर भी नहीं. I am talking from a series and there is a way of plan, way of action. So if you change any small thing from that, it will change, the outcome will be completely different. तो आउटकम अगर डिफरेंट नहीं चाहिए तो यू हैव टू नो कि भाई मैंने जो समझाया है उसी हिसाब से ही काम करना है. या तो, फिर नहीं एग्जैक्टली मैं वही पूछ रहा हूँ कि तू ये जो लोगों को बताया ना कि इसी तरह से काम कर रहा है, करना है, ये मतलब वो कॉन्फिडेंस या वो तूने सुप्रीमेसी कैसे लाया? मतलब देख मैं क्या कह रहा हूँ, इनिशियली आई वाज स्मॉल गाय. हाँ तो छोटा था तो समझते नहीं थे. या फिर मे भी कोई लोग तेरे को सीरियसली ले रहे, जैसे तूने बताया कि यू स्टार्टेड एट एन अर्ली एज, तो बरोबर लोग का तुला सिरियसली घेणं बरोबर. काम के टाइम पे भी होता है कि नहीं, मतलब मैं बोल के चला जाऊंगा शायद, आदमी फिर वापस अपने ही काम पे लगता है. बट एक बार हो गया, मैंने आज सुबह कुछ काम बोला, शाम तक वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, I come second day again. That is my work exactly. If I am not seeing something which has been fulfilled or fetched in my eyes, so stop it. Okay. Work again. वापस से काम कर ले. आदमी, किसी भी आदमी को उसका काम बार बार कराना पसंद नहीं है. फिर वो आप भी हो, मैं कोई भी रहेगा, वो उसको पसंद ही नहीं आता कि यार मैं कुछ समझ के कर रहा हूँ ना, ये उसको चिड़चिड़े हो जाता है. बट वंस व्हेन यू स्टार्ट रिपीटिंग द वर्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सामने वाले को समझ में आता है कि ये नहीं सुनने वाला, तो डू इट हिज वे. एक बार तो आदमी सुनेगा ही आपका. एंड व्हेन ही अंडरस्टैंड्स इट एंड व्हेन ही हिमसेल्फ सीज द क्वालिटी, he changes himself. You know, he understands work more than me. Maybe he is small at age, but he understands it better than me. So he won't argue with you. The initial phase is the only argument phase. कि नहीं ये कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ऐसा. पर वो एक बार वो फेज निकल गया तो आगे आदमी आपके साथ कभी आर्ग्यू भी नहीं करेगा. He'll just come with you. He'll just tell you कि how do you want it to be. And once you explain the thing, you don't even have to look about. क्या? तो दैट इज द वे हाउ आई अचीव कि हाँ भाई लोगों से मुझे इस तरीके से काम निकाल के लेना और मुझे मेरा काम इस तरीके से डिलीवर करके लेना. बेसिकली यू लेवल्ड अप इन ऑर्डर, ऑटोमेटिकली लोग तेरे को रिस्पेक्ट, मतलब वो आएगा ना कि मतलब एक रहता है कि तू किसी से रिस्पेक्ट डिमांड कर रहा है, एक है कि मैं दिल से तेरे को रिस्पेक्ट मैं कोशिश करूँ मेरा काम It has always been something with me कि मैं हमेशा वही सोचता हूँ कि मेरा काम है, तो गलतियां जितनी कम हो या सामने वाला कस्टमर जितना हैप्पी हो उतना ज्यादा बेटर है. एज इट इज दिस फील्ड फ्लॉलेस काम नहीं होता है कि whatever you think is flawless, it is flawless only in your eyes.
Yes. not in mine. Yes, exactly. Anybody can remove flaws in any case. Yeah. So just make a mark कि this is my marker, and after this marker I am never going to go back. कि एक साल में मैंने कुछ अचीव कर लिया, अगले साल में इससे थोड़ा और अचीव कर लूंगा, उससे थोड़ा. And this is a lifetime process कि I am also following it till now. This is 15 years of experience. I'm talking something. Next 5 years I'll teach myself something in a better way. I'll do work in a much efficient way, much better way. And that is how you upgrade. Yes, true. So if you know how to upgrade yourself, and it is a very small process. You are not going to get results every day. But over a period of time, when you look back, so you understand, that is the difference. It is basically consistency and gradual एक बोल सकता है progress during this consistency. Right. ऐसा नहीं कि हर रोज मैं एक गलती करूँ तो हर रोज कंसिस्टेंटली एक गलती करूँ. आई एम ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन. Consistency, गलती जिस दिन हो गया, and if you try not to make this गलती ever again, is the consistency. Exactly. गलती ही करते रहूंगा तो full efficiency कभी आने ही नहीं वाला है. और as this is a people based work, कि this is not a machinery based work, you also have to understand कि कहीं ना कहीं पे सामने वाले के भी कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, या सामने वाले, तो एक आपको थोड़ा खुद से होके भी समझाना पड़ता है कि like the people treat the laborers. हमेशा गाली दे के काम निकलता नहीं है. कि if you make somebody understand कि हाँ जो टाइम तू ले रहा है उसमें 15-20 मिनट और ले, but give me a better thing. So he'll understand it very well and he'll do the work very nicely. But if you continuously नहीं तो काम ही नहीं आ रहा है, तो काम ही नहीं सही कर रहा है, तो in that case you are frustrating the person as well as yourself. उसका मूड ही चल You are never happy with the person, nor the person employed by you is happy with you ever. True. So in that case you are losing your person also, the person who is working for you. You are losing the customer also, and somewhere you are losing the grip over your work. Yes. Which is going to be a very problematic thing in coming future. Perfect. And coming future can be any time. कि आज से 1 साल बाद भी हो सकता है या 10 साल बाद भी हो सकता है. That is how gradually you degrade or how gradually you upgrade. That is the only thing in any field given of work. If you understand your work, you'll do it much betterly. If you don't, you won't. True. Completely. Okay. मतलब एक थोड़ा सा we'll go कि now you've made your consistency. अभी हो गया तेरा सब कुछ. You've learned the tips and tricks. Yes, tips and tricks of the game. तो after that, आज के तारीख पे अगर मैं पूछूं तो what challenges do you face in terms of कि ये अभी तूने एक लेगेसी बिल्ड किया ऐसे बोल सकते हैं, तो इसको मेंटेन रखने के लिए तू कुछ अलग करता है. जैसे मैंने जो मेरे पिताजी के टाइम पे, जो मैंने पहले बताया ना, मेरे पिताजी के टाइम पे he was into residential painting only. Over the years what I have developed is industrial painting as well. I am doing residential painting as well. I am doing commercial painting as well. So you've expanded. I have expanded. But what happened? एक मिनट वापस से अपना क्या सवाल था? I was saying कि तू अभी ये बिजनेस को मतलब एक लेवल तक आ गया, ठीक है. अभी ये लेवल से ऊपर चढ़ने के लिए तू क्या मतलब हाउ यू ट्राइंग टू लाइक डू थिंग्स. हाँ, तो तू एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ. And no matter what, if I would only go for residential painting for all these 15 years, maybe I would do residential painting much better than what I am doing today. But for the expansion or the way I want to grow myself, it is never going to happen. So I took not only painting but coatings as a complete field. कि नहीं भाई, आपको जो भी चाहिए मेरे एक कॉल पे आपका सब, you should get every selection and every option for yourself. And it is, there are variety of customers what I've seen. If it's an Indian customer, जैसे मारुति में एवरेज कितना देती है, वैसे लोगों में भी है कि मैं I give 3 or 4 options. Do you want to do washable paint, non-washable paint? Do you want your paint to be there for 3 years, 5 years, 7 years, 10 years? And what will it cost you? And what are the process? What are the differences? So once the customer understands what is the process difference, then there is no problem at all.
And then the money is not the criteria, because if you give so many options, it is like producing a Maruti car which has 4 variants. That is the exact thing that I am doing in my business. I am giving you 4 variants. आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो वो भी दूंगा, आपको मैनुअल चाहिए वो भी दूंगा, आपको एएमटी चाहिए वो भी दूंगा, आपको कलर में भी कुछ मतलब समझ गया मैं कि तू एक तरीके से पिच करता है प्रीमियम, फिर एक मिड वेरिएंट और एक बजट फ्रेंडली। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो दैट इज वेयर एग्जैक्टली दैट इज, बट नॉट स्पॉइलिंग माय क्वालिटी। हाँ मतलब नहीं, यू आर नॉट स्पॉइलिंग योर क्वालिटी, यू आर जस्ट टेलिंग कि बॉस ठीक है तेरा गोल्डन मतलब तेरा तू 4 कदम तू आगे चल क्या, 4 कदम मैं नीचे आ रहा हूँ, बट इसके नीचे और मैं नहीं जाऊंगा। पर इसमें तुझे जैसे मैंने बताया कि तुझे ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा भाई। हाँ हाँ, इधर देखो गियर ही डालना पड़ेगा, क्वालिटी मिलेगा बट हाँ तूने कहीं ना कर। बट इफ देयर आर कस्टमर्स लाइक दैट आल्सो हु डोंट केयर अबाउट द मनी, who just want the quality to be perfect. So these people, where I face a problem is time becomes a very big constraint there. कैसे? क्योंकि अगर अच्छा काम करना है तो उसे टाइम लगेगा, पर फिर तो वो देने को भी रेडी रहेगा ना, मतलब नहीं होता है। बहुत टाइम पे होता है कि लोग नहीं बोलते, वेट नहीं देते बड़ा। अच्छा, दे अग्री विथ वन थिंग, if I am telling you कि 1 लाख रुपए मुझे इस चीज का दो, he'll agree with the 1 lakh rupees. But if I am telling him I want 10 days of work, he'll say complete it within 8 days because I'm agreeing with your price. Exactly. And I cannot agree on both the sides because I also have time constraint. People have time constraint और money constraint, 2 ही चीजें रहती हैं। तो अगर पैसे में मैं तेरे को एडजस्ट कर रहा हूँ तो मुझे काम जल्दी से जल्दी चाहिए। तो वो and that is but bit difficult to handle because there you have to deliver quality. And as this is a field where the particulars take the time. अगर मैं पेंट अप्लाई कर दूं, कोई पेंट को 8 घंटा लगेगा सूखने के लिए, कोई पेंट को 1 घंटा लगेगा सूखने के लिए। तो अगर मैं वो टाइम मैप आपको सही से ना करके दूं तो इट इज नेवर गोइंग टू फॉल इनटू दैट लाइन, नो मैटर यू टेल मी कि 8 दिन में ही करके दो, पर वो चीज उस प्रोसेस में या उस इसमें नहीं बैठ रही है तो आई कैन नॉट इवन गिव यू फॉल्स होप्स। ट्रू ना। तो इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि हाउ यू कैन कन्विंस द कस्टमर व्हाई दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर यू बिकॉज यू आर पेइंग मी सच अ हाई अमाउंट व्हिच नॉर्मली मतलब बेसिकली यू आर सेइंग कि अगर मतलब ऐसा नहीं कि आप मेरे को प्राइस दे रहे हो हाँ तो मैं कुछ भी आपको कुछ भी करके हाँ वो चीज होना ही नहीं चाहिए ना बेसिकली कि नहीं, अगर आप मुझे प्राइस पे कर रहे हो ना तो आपके प्राइस का राइट यूटिलाइजेशन मैक्सिमम टाइम के लिए और आपको सही प्रोडक्ट मिलना चाहिए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये काफी टाइम पे लोग समझ भी जाते हैं और काफी टाइम पे नहीं भी समझते कि उनको होता है कि नहीं नहीं मेरा पूजा तो अभी है या मेरा ये आई हैव डिसाइडेड माय ओपनिंग डेट एंड यू आर द गाय हु इज कमिंग लेट, सो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर दैट। मेरी पत्रिका जा चुकी है, मेरा सब कुछ हो चुका है, तो तेरे पास इतना ही टाइम है, तो इसी टाइम में मुझे कुछ भी करके कंप्लीट करके दे। सो दैट बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी कि हाँ, because employing people is not going to help because the process itself is going to take the time, and even if I try to do that, we have a different kind of machineries these days or things these days कि हाँ process can accelerate a little or but eventually 10 years पहले ये सब नहीं था मुझे, या ये चीजें ही नहीं थी कि पेंट जल्दी सुखाओ कैसे या कुछ कर लो कैसे, ये ऑप्शंस ही नहीं थे कि ऑयल पेंट भी जो होता है it normally what is recommended is 8 to 12 hours of one coat and then apply a second coat. These days you get mixtures of such kind कि if you apply oil paint it can dry oil paint off within 2 hours, you can apply the second coat. But it has happened recently into painting industry since chemical has played a very important role. पहले when I started working it was never a thing, so I used to have to think कि so this is a technological advantage for me, but a lot of people who work by hand do not understand that advantage. Or they are not educated. They don't exactly know which point and which thing is going to play out the biggest role for them. So that is all about educating yourself about any field what you have. So that is what I've been doing for me. तो
मतलब what we can take is, अगर I have to do a SWOT analysis of you, तेरे बिजनेस का, तेरे माइंडसेट का, तेरे ग्रोथ का, तो स्ट्रेंथ इज बेसिकली कि you've delivered always quality, Yes. you've always thought for I've customers at least advantage. I have, rather than saying I have delivered quality, na, I've always tried to deliver quality. Quality in my perception. That is your and strength. somebody else's. That is what I'm telling. Exactly. That that is your strength. Was very different. Yeah. Sometimes Tera- what I thought was the best quality. Some people have argued with me. कि नहीं मुझे नहीं पसंद आया ये काम. Strength is also where I can say is you have a various, मतलब तेरा अलग अलग तूने domains में अभी enter किया. Exactly. Not domain as in painting is your main domain, but various उसमें diversification की. Exactly. Weaknesses में what we can say is कि आज के टाइम पे तेरा weakness है कि तेरा customer is very time sensitive Very time and sensitive. cost sensitive बोल सकते हैं. Cost sensitive is not a thing. Cost sensitivity can be cancelled out. Yeah. Time sensitive customers cannot be, because they themselves have some different issue. तो टाइमिंग के लिए भरपाई नहीं हो सकता, कॉस्टिंग के लिए भरपाई हो सकता है. एंड ऑल्सो इज कि योर नेक्स्ट वीकनेस या व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज कि जैसा टाइम तेरा एक हो गया, तो देर इज वन मोर वीकनेस व्हाट आई फेल्ट इन योर बिजनेस इज कि अगर तूने एक जगह पे नहीं ठीक से काम किया, मतलब word of mouth is a very big problem in every business. In fact, बड़े businesses में भी word of mouth को बहुत ही ज्यादा sensitively लिया जाता है. Because once if there is one whistle blow कि हाँ this person or this entity is not working right, it grows so fast कि even if you try to work very hard, you cannot grow that faster. So it doesn't make sense. So if you want to spend your 30 years of your life doing something, and if there is some problem what people are talking about, so it takes 30 years is not going to be enough to achieve expertise in it or to grow in it. yes. So there should be minimum of problem with people. Convincing them or talking nicely to them, understanding them is the most important part of any business, because customer requirements, customer satisfaction is what everybody is working for. Not only me, but everybody in every business. Service industry is basically हाँ बहुत ज़्यादा ही होता है, but सर्विस इंडस्ट्री में मुझे कहीं ना कहीं पे वो लगता भी है कि people 19-20 का जो फर्क है ना, they understand it because of that only, because it is a handmade work. If it would be machinized work, nobody could understand 19 or 20. Everybody wants 20 only because it comes out from machine, so there should be no chance of mistake. As this is labor-based work or hand-based work, people give a little edge to that. So that also becomes a strength in that case, not only a weakness. हाँ मतलब obviously opportunities में if I would say there are और बहुत सारे opportunities है तेरे फील्ड में. मतलब जैसे तूने बोला कि तेरे साइकिल में रिपीटेबिलिटी है, कस्टमर साइकिल हर 3 साल बाद 4 साल बाद बढ़ते ही रहेगा, और अगर तूने अच्छा काम किया रहेगा तो वो कस्टमर इंश्योर करेगा कि तेरे पास और ज्यादा. हाँ, तेरा अपॉर्चुनिटी. और एक ये भी लगा मुझे कि तू जब कस्टमर को सजेशन दे रहा है तो तू ऑटोमेटिकली अपने कंपटीशन को एलिमिनेट कर रहा है. हाँ, exactly. Now, I would like to know my customer कि if he's entering my showroom, which is hypothetical. True. I have no showroom. But if I can understand कि what exactly do you need, so I'll exactly quote you or I'll exactly let you know कि हाँ these things will give you these things. And if you want something more, I can offer you these things also. If you want something less, I can offer you. So there is no chance. This has been my forte since the start. What I think कि out of 10 meetings that I have been held, I have always passed in 8. 2 meetings maybe here and there, but 80% is my passing ratio since 15 years now. कि ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कस्टमर को समझा ही नहीं पाया कि मैं आपको क्या डिलीवर करके दे सकता हूँ क्या नहीं. ऑल्सो तेरा एक और स्ट्रेंथ मुझे जो लगा, मिस आउट किया मैंने, was कि तू ना जो तूने पॉइंट रेज किया कि मैं हर रोज उधर जाके I'll sit, I'll ensure कि मैं सुपरवाइज करके
तूने वो लेवल अप किया खुद हाँ, को, वो एक तरह स्ट्रेंथ था। बट अभी जो इशू है वो तेरा थ्रेट इज बेसिकली जो स्वॉट का मैट्रिक्स बनाते हैं ना, threat is तो तेरा क्या threat. थ्रेट है, बिजनेस में क्या थ्रेट है तेरा ऐसा? Industry is growing very fast, but people working with the hand are growing very low. Everybody wants to work on computers or some a little education. Everybody wants to work on computer. Yeah. Nobody wants to work with the hand. Nobody wants to change their site of work every 15 days, every 10 days, or every day. So the people working in this industry are getting scarce and scarce day by day. But machinery and equipments are also not growing that well. So eventually this field is not dying. But it is getting slower because there is no technological innovations here over here. कि हम 10 साल पहले भी आपको स्प्रे पेंट ही पता होगा, आपको ब्रश रोलर यही चीजें पता होगी, 15 साल पहले भी यही चीजें पता होगी, और आपको आज भी वही चीजें पता है. यू माइट नो कि हाँ एक्सटर्नल बिल्डिंग के लिए लिफ्ट लगा दिएगा ये, बट बेसिक मशीनरी व्हाट वी कॉल इट हैज ऑलवेज बीन द सेम एंड विच इज नॉट इम्प्रूविंग एनीथिंग. इफ आई गिव अ ब्रश 9 inches, 7 inches, 10 inches, whatever, and if I'm a person, if I myself can paint 5,000 square feet in a day, that is what I'm going to expect out of my person also. Paint 5,000 square feet in a day. But this is what I know, but this is a blockage for me. If I have some machinery or some equipment which can paint 10,000 feet or something like that. लाइट का थोड़ा ये हो रहा है यार, देखो तेरा आंख लाल हो रहा है. रुक जा, लाइट के लिए एक दो दूर रख दे चाहिए तो एकदम. 2 मिनट. हाँ इतना भी चलेगा, आंख पे नहीं आ रहा, थोड़ा कम आ रहा है. चलेगा? हाँ थोड़ा कम आ रहा है अभी आंख पे. सॉरी. यस, अच्छा चलेगा. अभी ये एक हो गया, चल तेरा बिजनेस पार्ट हो गया, तो इसका तेरे फैमिली लाइफ पे कैसे असर पड़ता है? मतलब देख, व्हाट आई फील इज कि बिजनेसमैन प्रॉब्लम ये है कि the working, I have made it very clear in my life. I am not somebody who works from 9 to रात को 12. ये बोलने के लिए लोग बोलते हैं, कोई इतना टाइम काम नहीं करता. अगर कोई आदमी 9 से 12 1 बजे तक काम कर रहा है, एक तो गधा काम कर रहा है भाई. भूखट ये ज्ञान मत दे, मतलब काम 2 ही घंटा कर, fetch yourself exactly what you want. So I am not somebody, but I follow work timings. If you call me from 9:30, since a person whom I am employed has entered your house or entered your premises, till the time he leaves your premises is my work timing. You can call me whenever you want, whatever you want, but not after that. This things some of people do understand that, some of people don't. They don't consider that my timing as it should be working. We have office timings, right? कि 9 से 5. वो रीजन ही हुआ है कि 5 से लेके 6 बजे तक तूने एक्स्ट्रा टाइम 1 घंटा काम कर लिया. पर अगर आप वो मुझे 9 और 10 बजे फोन करके बोल रहे हो कि नहीं आप भी आके साइट विजिट करके जा, it doesn't make that much of sense. And as it is, if somebody has made a mistake also, somebody has not. Since I have explained that there is no machinery or equipment enhanced in this field, I cannot make anything happen there and then. Just I understand your curiosity, everything as well. But me being there and you pointing out those things on me is not going to help. You could do this tomorrow morning also. I could understand the work still. I could let you know what I can do. But people in these fields get a little furious. Okay. कि नहीं ऐसा ही नहीं हुआ, अभी होना चाहिए, वो होना चाहिए. हाँ ऑब्वियसली वर्क प्रेशर कंस्ट्रेंट सबको होता है, बट understanding the process is not what people do. People just go कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्टर ऐसा है, इसका वैसा है, आगे का स्टोरी. तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस बेसिकली तेरा तो ठीक है, बट ओवरऑल एक फील्ड में बहुत मतलब बहुत खराब है. There is no, if somebody is planning to give work very very hard, even I try to do that, work very very hard, but understanding your work timings also is very important. This is just lack of education or no lack of education. Somebody who has a better work life balance is just because he is educated how work life balance should be. तेरे डैड के टाइम पे
जब तेरा मतलब काम का स्टाइल रहता था उनका, तो वो तो और भी बदतर होता होगा। अब भी तो फिर भी सुधरा होगा ना, ऐसा लगता है मुझको। अभी हाँ, उतने में उतना तो ठीक है। क्योंकि मतलब पहले लॉजिक, रिस्क बहुत ज्यादा होता था, अभी बहुत ही ज्यादा होता है। अभी रिस्क कट ऑफ कर देते हैं, ज्यादा करके तो कट ऑफ हो जाता है। ओके। पर रिस्क क्या है? रिस्क पहले क्या जो है? बिल्डिंग्स होती थी, हाँ। ऊपर से झूला ही छोड़ दिया, अच्छा, हाँ हाँ, देयर यूज्ड टू ओके। बी नो हाँ सेफ्टी बेल्ट हाँ देयर। तो you have to be there because हाँ, there is somebody's life is on the stake. It is एग्जैक्टली not the work. एग्जैक्टली। Somebody's life is also on stake. तो you have to be there. You cannot be like कि हो जाएगा काम। और हाँ अभी उतना थोड़ा ईज है because I have mechanical parts कि हाँ, this is no झूला, this is a lift हाँ, which वो can carry 7 people हाँ, together यस, and it will go up and down and it is not going to fail unless and until a fool is operating it. Who एग्जैक्टली। doesn't understand it? So तो तुम्हारा काम का एफिशिएंसी भी बढ़ गया, स्पीड भी बढ़ गया, एग्जैक्टली रिस्क भी एंड कम हो रिस्क भी गया। कम हो गया एंड विच आई डोंट हैव टू फियर अबाउट कि इनिशियली रात रात में भी काम चलता था मेरे डैड के टाइम पे। तो रात रात को 10 9 9 10 10 बजे लोग झूला हाँ, छोड़ते। आई exactly, डोंट मैं वही अंडरस्टैंड सोच कि रहा था कैसे कि करते थे हाँ कि एनीबडी नो मैटर व्हाट दे आर पेइंग मी एंड इफ दे आर्ग्यू मी कि 7 के बाद आप ये चुप करके काम करो, तो आई वुड नॉट डू इट टुडे। कि नो मैटर व्हाट यू पे मी, आई एम नॉट रेडी टू रिस्क एनीबडीज लाइफ। इंश्योरेंस है, एवरीथिंग है, बट हाउ कैन यू पे समबडी आउट ऑफ योर घाई? मतलब इफ समथिंग सम समझ मिसहैप गया ना मैं, हैपेंस, हाँ ट्रू ट्रू। तुम्हारे घाई की वजह से ऐसे पैसा आदमी का भरपाई नहीं करके दे सकता। तो वो चीज है, तो वो होना भी नहीं चाहिए। और तो things have been a little different there, little different here, but people have grown very, क्या बोल सकते हैं कि घाई करता था सब। वो समझ गया मैं वही बोल रहा था, बट मैं वही सोच रहा था कि एज कंपेयर टू तेरे डैड के टाइम्स, तेरा वर्क लाइफ बैलेंस तो फिर भी काफी अच्छा है, काफी ठीक अच्छा है। हाँ, मैं वही सोच रहा था काफी अच्छा। बिकॉज उनके टाइम पे तो नहीं था, एंड उनके टाइम पे तो और लोगों का भी ज्यादा प्रॉब्लम होता था। बिकॉज राइट नाउ आई कैन टेल यू समथिंग कि प्रोसेस ये होता है, आप घर जाके यूट्यूब करोगे, आप जाके गूगल चेक करोगे, आपको प्रोसेस मेरा मैच हो गया, इवन इफ इट्स 90% मैचिंग ना, पीपल आर सेटिस्फाइड। इफ इट्स 100% मैचिंग, पीपल आर वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज ये यूट्यूब के हिसाब से काम करे, गूगल के हिसाब से काम। कोई ये नहीं देख रहा कि मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से काम तो करूँ। तेरे को वो इशू आता है जो, देख वो डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं कि मैंने गूगल पे ये पढ़ा है, दिस हैपेंस इन होता है। एवरी फील्ड। ये होता ही है, होता ही है। देन तेरे बस कोई ऐसा बोल दे, कुछ एक्सपीरियंस रहेगा तो कोई तो रहेगा होशियार जो बोला रहेगा नहीं नहीं ये तो शायद आप गलत स्ट्रोक लगा रहे हो। मेरे इसमें ये हो गया कि आई पेंटेड अ हाउस हाँ, एंड व्हाट हैपेंड इज ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग डोंट टेक नेम्स, मतलब बता सकते हो द डिटेल पर्सन स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद मी हाँ कि you applied different paints on different wall हाँ, and the whole shade was the same shade. अच्छा हाँ So I was just trying to convince him कि why would I just change one wall का color and which is not drastic change or something. You just feel in your eyes it's different. कौन रिफ्लेक्शन आया होगा कहीं, There was a shadow part हाँ, there, but exactly. he was not willing to accept it कि no. In that case अगर वो सामने if that person has time तो I clear it up there and then कि नहीं आप यहाँ पे 10 मिनट रुक जाइए, I'll apply यहाँ पे, आप जहाँ पे फर्क दिख रहा है ना मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। फिर भी नहीं आएगा तो मेरा फॉल्ट मतलब नहीं है, एंड आपके सामने ही जो भी है आपके सामने ही है। बट इफ इट समटाइम पीपल आर्ग्यू आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, आप करके रखो मैं कल आऊंगा, तो आई डोंट डू। इफ यू हैव टाइम एंड यू हैव दोज इश्यूज आई कैन क्लियर इट अप इन फ्रंट ऑफ यू, बट इफ यू जस्ट थिंक कि हाँ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन एयर, दे आर नेवर गोइंग टू डू। ट्रू। बाकी और क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नॉर्मल लाइफ ही चलते रहती है, जो चल रहा है वही एग्जैक्टली। या थिंग्स चेंजिंग अ लिटिल डे बाय डे, वही चीज है बस। राइट नाउ तो ठीक है, न्यू इंफ्रा जो डेवलपमेंट्स चालू है, आई एम एक्चुअली थिंकिंग अबाउट देम कि हाँ लो रिस्क एंड हाई profit or high weightage kind of thing is what is happening in the IT industry. Okay. Where the paint premises painting is very low. Internally only they paint whatever they paint. External buildings are light up
facades. हाँ facades. So basically, I'm trying to shift more of my presence over there, Okay. so that the quantity of work is also immense there, and the quality And is maintained. Yeah. It is never going anywhere. And your ROI will be also good because IT companies pay good. If I'm correct, If it's a I don't know. MNC, I'm just judging. it's basic logic. If it's a local person, he is going to bargain. Okay. If he's a little better than that, he'll bargain, or he'll not bargain, but he'll try to make you work more. ओके हाँ तो बेसिकली हिल से कि बॉस मैं आपको 100 रुपए तो 100 रुपए दे रहा हूँ बस मेरा 100 रुपए का काम नहीं, आपको मुझे 120 रुपए का काम करके दे। एग्जैक्टली कि थोड़ा ये भी करके दे दो। MNCs में ये प्रॉब्लम नहीं आता है। The more you, this is how you grow. कि private limited firms, MNCs, people want to work with them because they are not payment wise late, they are not work wise late, they provide everything whatever you want at the workplace, and it's a very good environment to work with them. It is there is never such a problem कि no आपके तरफ से ये नहीं हुआ, and they if they want delivery at time, just in time, just as they call in Japan or JIT GIT, so it becomes very, a contractor or person can become very efficient in that case, which doesn't happen in small scale work. So okay you were saying something तो अच्छा तो अगर मतलब तेरे को किसी को बताना रहेगा कि मान के चल मेरे को ही बताना है कि भाई आई कम टू यू आस्किंग कि बॉस मैं सोच रहा हूँ कल पेंटिंग के बिजनेस में उतर जाऊं, तो कुछ बताना चाहेगा? कुछ भी रहेगा तेरे साथ? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई। तो करना क्या है, तेरे को सर्विस में जाना है, तेरे को पेंट बेचना है, तेरे को डीलरशिप लेना है? नहीं मतलब मैं वही बोला ना, तेरे जैसे ही मुझे पेंटिंग का बिजनेस अगर चालू करना है फॉर एग्जांपल, if somebody who has command over people and can make people understand what they want, तो if it's a customer, हिंदी में बोल मतलब बड़ा पब्लिक को समझ में आएगा। हाँ देखो इसमें लॉजिक ऐसे ही कि देखो अगर लोगों को समझाने आता है दोनों साइड पर, कस्टमर को भी और लोगों को भी, लेबर क्लास को भी, तो ओनली एंटर इनटू द बिजनेस। इफ यू हैव एनी वीक्स, एक भी वीक साइड है तेरा, तो इट बिकम्स अ वेरी बिग हैसल। वो तेरा मेन मतलब की टेक अवे तो ये बिजनेस का तुझे लोगों को कन्विंस ठीक से करना आना चाहिए, काम करने वाले को ये कन्विंस करना आना चाहिए कि तुझे काम कैसा करना है, और काम करवाने वाले को ये कन्विंस करने आना चाहिए कि भाई ये ऐसा ऐसा काम करके लेगा तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, या ये कुछ सोल्यूशन है जो अभी तुम सोच रहे हो, दैट इज अ रफ आइडिया। तो rather than making it a rough idea, you have called me, so you want something concrete, so you have to make a balance between both the sides. If you can make that balance, तो ये इंडस्ट्री में सही से टिक पाओगे, नहीं तो सर्विस इंडस्ट्री बहुत ही भयानक इंडस्ट्री है। मतलब if somebody cannot handle it, he'll be out in a month. Why I asked you is कि देखा भी कैसा है, YouTube में तू देखता है कि कोई भी आ रहा है, YouTube वीडियो खोल दिया, ठीक है। दूसरा है कि कोई अलग बिजनेस है, मान के चल कार वॉशिंग का बिजनेस खोल के चालू कर दिया विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। किसी ने शेयर्स का ऐप खोल दिया विदाउट थिंकिंग, वो ऐप चालू कर, तो वैसा इधर यहाँ पे मतलब इट इज नॉट लाइक इजी नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा डिपेंडेंसी लोगों पे है, और डूब भी जाएगा। जब डिपेंडेंसी लोगों पे है तो आपको हमेशा वो समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करवाना है, आपका पिक्चर क्या है। अगर आपको दीवार का मिरर बनाना है तो आपको करने आना, आपको किसी से वो करवाने आना चाहिए। ये भी है। तो इट मेक्स अ पॉइंट। आप कितना भी सोच लो कि ये दीवार को मैं मिरर बना दूंगा, आप खुद के हाथ से अगर बना सकते हो, वेल देन गुड। बट अगर ये एक आदमी का काम हुआ, एक दीवार का काम हुआ, अगर कल पूरे ताजमहल को मिरर जैसे करवाना है तो एक आदमी का काम नहीं, सालों बीतल जाएंगे। तो आपको बस वो कन्विंसिंग या वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये आदमी से मैं ऐसे ऐसे तरीके से काम कराऊंगा तो चीजें होगी। एंड सबसे बड़ा इशू वही होता है जो काम करते हैं खुद के हाथों से, दे आर नॉट एजुकेटेड, तो उनको वो चीज समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। मैं कस्टमर को समझा सकता हूँ, वो एजुकेटेड है, उसको पता है किस चीज का पैसा देना है, किस चीज का पैसा नहीं देना है,
बट जो काम कर रहा है उससे उस चीज का वैल्यू नहीं है, उससे बस हुआ कि मेरा आज का खर्चा निकल जाएगा तो आई एम डन विद इट। वो जैसे अभी अपन खाना खाते वक्त भी बोल रहे थे ना कि अपना थोड़ा प्रोफेशनलिज्म कम है, तो वो बरोबर। तुम्हारे यू शुड हैव दैट, यू शुड, मतलब ये सब चीजें कैसे मैटर ये करता सब है। चीजें विद ऐसे ही नहीं कि ये मैं आज नींद से normally- उठ गया चलो आज पेंटिंग का बिजनेस चालू नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं होगा भाई। तुमको समझ में आना उसके चाहिए, लिए तुमको सीखना समझ में चाहिए। आना चाहिए कि एग्जैक्टली पेंट में भी 50 टाइप्स है। यू हैव आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पेंट कहाँ पे किस जगह पे क्यों अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई नहीं होता है, ट्रू। क्या क्या चीजें कहाँ पे लग सकती है, कहाँ पे नहीं लग सकती। कोई कोई हीरो ने सरफेसेस मार दिया बाहर के साइड पे लस्टर, तो खत्म हो खत्म गया। ही हो गया। एग्जैक्टली तो वो करके नहीं चलेगा, पहले तो आपको खुद को समझ लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर लोग ढूंढने पड़ेंगे जो आपकी समझ को मैच कर रहे हैं, जो दीवार पे कहीं पे भी कोई सरफेस पे उतार सके, एंड देन यू कैन मेक इट रनिंग। फाइंडिंग कस्टमर इज नॉट डिफिकल्ट इन दीज डेज। आपने 2 ऐड इधर डाल दिए, 2 ऐड उधर डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन सम फर्नीचर ऐड कि 2 लाख रुपए में घर का फर्नीचर, 3 लाख रुपए में घर का फर्नीचर, दे डोंट इवन चेक द साइजेस, दे पुट बोर्ड्स लाइक दैट। यू कैन नॉट पुट बोर्ड्स लाइक दैट until and unless you understand the service industry completely. True. This is not IKEA ये सब चीजें बहुत बड़े लेवल पे होगी। अगर आपको स्मॉल, अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो इतने बड़े लेवल का नहीं सोच रहे हैं। यू आर स्टार्टिंग एज अ पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर, ऑब्वियसली आप इतने बड़े लेवल का नहीं सोच रहे। सही सही है, तो इनिशियल छोटे लेवल से छोटे लेवल से, हाँ, आपको वो बस भी पूरा अंदर बाहर सब समझ दिस इज लाइक फिर करो। आपको इंजीनियरिंग कराई गई है, 4 साल समझ के लिए कराई गई है। आप जब बाहर पढ़ते हो ना, आज मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा था, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो मुझे पढ़ाया गया था वो आज एप्लीकेशन कहीं भी कुछ नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड। मायवान है, बहुत सारे अलग अलग है कि, बट दोस टेक्निक्स वर नॉट टॉट अस इन इंजीनियरिंग। When we started working, we understood हल्लू 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 काम करते करते जो पता चलने लग गया, फिर उससे हमें पता चल, फिर उसमें समझ में आता है कि हाँ ये काम करते वक्त ये लोग हमारे साथ थे, इनको ये चीजें समझ में आई। तो वैसे लोग आराम आराम से कैप्चर करके ही बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। गोइंग बॉन्कर्स हो एक ही दिन में कुछ नहीं होता है। मे बी आप कुछ टाइम चला लोगे, बट आफ्टर टाइम लोगों से गालियां खानी पड़ेगी, नहीं काम बराबर नहीं है। तो एंड ये सुनना बहुत गलत लगता है कि बिकॉज मेहनत तो आप कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू लिसन टू दैट दोज वर्ड्स कि नहीं आपका काम सही नहीं है, आपका काम ऐसा है, आपका काम वैसा है, इट यू योरसेल्फ फील कि is this the place for me or do I have to, and ये न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स जितने हैं फ्रॉम माय एज, एवरीबॉडी हैज दैट इशू। हर एक आदमी ने कभी ना कभी लाइफ में गालियां खाई है, हर एक आदमी ने कभी ना कभी सोचा साला एक करूं या छोड़ दूं। जम रहा है ना यार, वो एक फेस हर एक की लाइफ में आता है कि कोई आदमी इतना खराब टच करके चला जाता है, एंड दैट इज नॉट इवन दैट पर्सन's fault. That is because we have not delivered something which was in his eyes, which we had promised that we will. तो उसमें उसका भी सही होना लाजमी है, हमारे भी कहीं गलत होना ये नहीं है। बट वो चीजें नहीं, पर वो चीजें जब आप सुनते हो तो थोड़ा बुरा लगता है कि नहीं, एंड यू स्टार्ट टू रीएवैल्यूएट योरसेल्फ कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सेम लाइक आई सेड, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल प्रोसेस। Every day you learn something new, but over the years when you see, you have a great experience. Over one day you will see you have no experience. You don't even understand whatever you learned yesterday. तो एक पूछना था, तेरे लाइफ में कभी ऐसा कोई दिन, मतलब देख मैं क्यों बोल रहा हूँ, जॉब में मैं जब था तो मुझे एक पॉइंट ऐसा आया था एक दिन जब बहुत गंदा काम किया था मैंने, पूरा मतलब फटे गंदा काम, और ऐसा काम कि गड्ढा बनाओ मैं सर छुपा के छोड़ देता हूँ, काइंड ऑफ वो वाला कि भाई मैं गलत जगह पे आ गया, मैं गलत चीज कर रहा हूँ, शायद मैंने ये करना ही नहीं, आई विल गो बैक टू इफ पॉसिबल डे 1 पे। तो तेरे लाइफ में ऐसा कभी हुआ कि तूने वो मोमेंट पे वो तेरा काइंड ऑफ टर्निंग लाइफ भी हो गया, टर्निंग पॉइंट भी हो गया, एंड वो एक दिन है जो तू कभी नहीं भूल, मतलब आई नो माय डे, देयर वर सम कस्टमर्स इन माय लाइफ, एक्चुअली नॉट वंस, एक दिन बता जो two मतलब times this has happened.
कि मेरे एकदम खास फ्रेंड था कि मुझे कुछ काम उस बहुत अलग तरीके से डिलीवर करना था. उसने मुझे टाइम भी दिया था, बट आई डोंट नो व्हाई टिल द लास्ट डे आई कुड नॉट डिलीवर इट ओनली. आई डिडंट चार्ज हिम एनीथिंग कि वो काम ही इतना खराब हो गया था मुझसे, तो मुझको उससे चार्ज ही नहीं करने हो रहा था, बिकॉज आई न्यू हाउ आई वर्क. But that was a bad day. That was the day when I was, and it was after that I got employed. It was 5-7 years after that I got employed. So then there was a phase कि I was thinking कि साला सही तो कर रहा हूँ ना, ये कर भी रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ. Situations come in your life. और ये तभी आता है कि एकदम क्लोज कोई आदमी है ना हर्ट हो जाता है आपसे, या किसी ने बहुत ही ज्यादा विश्वास रख लिया आप पे, और आपको समझता है कि कोई he never questions you, he never argues with you, he adjusts with you. But at the end of the day, when you are delivering the product, if it is not right, you always know it in your heart that this was not right from a side. This happened twice with me in my life, but that is ups and downs of working. I guess everybody has to face that so that they understand कि how can I deliver things better. If you go in that phase only कि नहीं हो रहा है तो आपसे कभी नहीं होने वाला है. But if you try कि आज हुआ, इसके आगे कभी नहीं होना चाहिए, तो बिकॉज ये मेरे साथ हुआ था जब मैं आई वॉज वर्किंग ना बैक इन बॉम्बे. तो मेरा जो बॉस मतलब एक्स बॉस, ही इज स्टिल काइंड ऑफ माई गुरु एंड इज इन टच विद मी. तो वो गलती से मैंने एक कोटेशन डीलर का उसमें प्राइसिंग ऐड करना था, कुछ तो ऐसा करना था, एंड आई डिड नॉट डू इट स्ट्रेट अवे विदाउट, एंड कस्टमर को दे दिया. एंड भाई वो दिन मैं वाशी स्टेशन पे उतरा, मेरे बॉस ने फोन किया, भाई बोले क्या क्या किया तूने, ये वो एंड झाड़ दिया मुझे. टिपिकल लेफ्ट राइट वाला जो इंडियन झाड़. that is what वो दिन मैं रोने लगा था वाशी स्टेशन पे. सोच 100 किलो का आदमी, क्या 26-27 साल, I was literally into tears. But वो दिन के बाद ना भाई मैंने कभी भी गलती नहीं किया, मतलब that was the lowest. उधर से I started hitting exactly. That is when you know ना कि I don't want to hurt you. ये सही नहीं हुआ है ना अपने साथ. Exactly. It was a very very minute mistake. But no matter how minute it is, you cannot make up for it. So it becomes a mistake. Yeah. And you cannot wipe it off. Exactly. It is never going to get wiped. नहीं गलत प्राइस दिया है मैंने आपको ना, तुम ये बोल सकते हो मैं मेरे जेब से दे सकता. And it is and that the money also doesn't come apart. It is a thing about कि मैंने तेरे पे भरोसा किया था ये चीज करने. Exactly. तूने वो भरोसा मेरा तोड़ दिया. And that you can watch in somebody's eyes कि वो होता है भाई. People don't even argue कि there have been, जैसे मैंने फ्रेंड का बोला, I didn't take money from him. He was, the moment I said I don't want to take money from you, he was arguing behind it कि नहीं भाई ठोकर से पैसे नको है, तूने भी काम किया, मेहनत की है, एक माइन्यूट मिस्टेक था, उसको तो पता ही नहीं होगा ना कि वो गलती उसके लिए तू इतना मत ये कर. पर वो मिस्टेक इतना मेरे को बड़ा लगा कि नहीं भाई पैसा ले लूंगा तो मैं गलत कर दूंगा, और उतने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ. बिकॉज इफ आई टेक मनी फ्रॉम यू, 7 years what I have been wasting behind will be complete waste. True. And I'll have to call it waste because I take money from you. If I don't, I'm just giving myself another chance in my mind, my brain कि एक गलती आदमी है यार, आगे से मत कर, एटलीस्ट उतना तो courtesy रख. You are not told him. हाँ, I didn't take the money यार. शेवट पर नाही घेतले पैसे ते. त्यांनी 2-3 महिने मागे लागलो होतो. अच्छा पण त्याला माहित होतं का की हो. अच्छा ही स्टिल. अरे आता कितना रॉयल दोस्त है, ऐसा दोस्त है. अरे अंतच होता. सीन हो गया था कि मेरा एक्चुअली पेंटिंग में फॉल्ट नहीं था. माय पेंटर यूज्ड अ टॉयलेट एंड ही डिडंट क्लीन इट अप. तो वो जब आया और उसको दिखा, तो ये दिस इज नॉट अ पेंटिंग थिंग, दिस इज नॉट सम, दिस इज सम एथिक्स है, ये सैनिटाइजेशन है भाई. पढ़ा लिखा है तू, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए. तेरे लोग कैसे भी रहे, कुछ भी हो, ये बहुत गलत लेवल का गलती है कि दिस पॉइंट्स आउट ऑन द योर कैरेक्टर बेसिकली कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर who does not take care about sanitization. I have a daughter at my place. If it would happen at my place, and just because that guy is my friend, he's not talking anything,
इफ यू नॉट बाहर बी रहता माई तो फ्रेंड, चिल्लाया रहता ना, सही है। कोई हाँ दोस्त नहीं रहता तो मेरे को फाड़ दिया, मैंने किसी और को फाड़ दिया रहता था कि भाई गलती गलती होती है, ये गलती नहीं है, ये कुछ तो फालतूपना है करके. तो दॅट हिट मी व्हेरी हार्ड की नाही यार. आणि हे फक्त जवळचा मित्र आहे म्हणून ते अजूनच जास्त लागलं की चायला हे नव्हतं झालं पाहिजे कधी, किंवा ये गलती आहे भाई, ये आज तक ठीक था किंवा आतापर्यंत झालं ते पण एक्सेप्ट करणं, पण ह्याच्या पुढे झालंच नाही, हे चुकून पण नाही झालं पाहिजे, ही तुझीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. ती तुझीच लोक तुझे कॉन्फिडेंटली कोणाला सांगतोय की माझी लोक येऊन काम करून जातील, तर ती फक्त कामच नाही करून केलं पाहिजे, त्याच्या मागचं सॅनिटायझेशन, समोरच्या फॅमिलीला कमीत कमी त्रास झाला पाहिजे, समोरच्या लोकांना कुठेही काही असू दे कमीत कमी त्रास झाला पाहिजे, ही पण रिस्पॉन्सिबिलिटी कुठे ना कुठे तुझी आहे. तर ती जर नाही घेतलीयस तू, इट डझंट मेक एनी सेन्स. मनी कैन नेवर मेक इट अप. तू पॉइंट ही नहीं होगा वो चीज का, वो तो हम पैसे घेऊन तू कायमचा फसशील की अभी तो तू खुद को भी फंसा लिया है, तो भी, तू हाँ, याद रहेगा. एंड एग्जैक्टली, तो वो तेरे को हमेशा याद रहेगा कि नहीं, यू आर नॉट द मैन ऑफ योर वर्ड, और यू आर नॉट डिलीवरिंग थिंग्स. तो रादर डोंट पे मी, डोंट टेक द मनी, बट डोंट डू दैट मिस्टेक अगेन. नहीं समझ. तो मनी वॉज फॉर दैट थिंग कि आज मेरे को चटका लगेगा नई चीज का, तो मेरे को हमेशा याद रहेगा की नाही भाई, इसकी वजह से आपण, और कुणी पैसे बुडवले नाहीत आपले, आपण स्वतःचे पैसे बुडवले, तर मग ते नाही झालं पाहिजे. आणि जर तू स्वतःचे पैसे बुडवतो म्हणजे तू स्वतःबरोबर एक चालून देणार नव्हता, तर ते कायम कन्सन्ट्रेशन मध्ये असलं पाहिजे. जे तुला चालत नाही ते कुणाला चालू शकत नाही मग, कारण तू काम करायला बाहेर निघालाय, बरोबर, फ्री का कुछ ही करने के लिए निकला, सोशल सर्व्हिस. एक्झॅक्टली. तो था भाई, तो एक वाढू, तेव्हा मला 2-3 दिवस वाईट वाटत होतं की काय चालू आहे काय ना, किंवा असं कसं काय झालं करून. मैं उसको 1-2 बार बोला, त्यांनी 3 महिने कॉल केला मला की भावड्या तुझे पैसे ठेवले, घेऊन जा घेऊन जा घेऊन जा. नहीं नहीं भाई, वो पैसा लूंगा तो मेरे को थोड़ा अलग हो जाएगा. एंड जस्ट बिकॉज वी हैव रिलेशन लाइक ब्रदर्स, तो इफ आई कुड डू दिस टू माई ब्रदर, कस्टमर बिकम्स अ वेरी दूर का पार्ट. तो वो चीज मेरे को बिल्कुल ही नहीं चाहिए. ये मेरे को थोड़ा अक्कल का पार्ट रहेगा इसके लिए दे करके. तो था बारे बहुत, बाकी काम में 19-20 इवन पीपल अंडरस्टैंड, लाइक आई सेड कि लोग यू कैन ऑलवेज से कि एक दिन दे दो, मैं आपको और एक, अगर आपको पसंद ही नहीं आता है आपको और एक कोट, पर ये चीज में इट वाज बियॉन्ड रिपेयर ना. इफ आई कुड सी इट आई वुड हैव रिपेयर्ड, बट जस्ट बिकॉज ही हैज सीन इट नाउ, it is beyond repair. No matter what I say, everything becomes useless. तो था म्हणजे ते प्रसंग असतात, बट दॅट इज हाऊ यू ग्रो. एक बार हो गया, स्मॉल एक्सपिरियंसेस, गेले ते दिवस. ठीक है, तो शैल वी रैप अप. 5 मिनट मतलब पॉज. So I hope you just liked this podcast. I know बीच में ही ख़त्म हो गया strangely, suddenly, and if you guys were linked with it, I'm so sorry यार, but उतना ही था. बात करने के लिए पूरी रात भी कम गिर जाती है, बट आई मीन इससे ज़्यादा और कुछ था नहीं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं था. एक सेकेंड सीरीज़ या एक सेकेंड पार्ट इसका आएगा फॉर श्योर, एंड आई होप कि वो भी आपको उतना ही अच्छा लगे. अगर आप इधर तक रुके हो इस वीडियो में, डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद अपूर्व इन द सेकेंड एपिसोड. आई मीन इसका एक और एपिसोड बनेगा अपूर्व ढाकलिया का, बिकॉज बंदा इतना, द एनर्जी एंड द वाइब दैट ही गेव was fantastic. So thanks guys, thank you for making it till this long. Love you a lot, and God bless everyone.